اگر ہم زور سے نعرے کا جو ہے جواب دیں گے تو آقا کریم علیہ السلام خود اس کا جو ہے جواب بھی دیں گے، خود سنیں گے بھی، اور یقیناً میں کہتا ہوں ہماری جو ہے اس محفل میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونا شروع ہے، اللہ کی رحمتیں کوئی بارش کی نازل ہے۔ اب میں نعرہ لگانے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے حضرت کا جو ہے خطاب بھی سننا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اب حضرات کے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، ان کا بیان آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے حضرات تمام آگے آ جائیں، چھوٹے سائڈ ہو جائیں، بزرگوں کو جگہ دیں تاکہ وہ بھی بیٹھیں۔ اب جتنے چھوٹے تمام سامنے بیٹھیں، اور بزرگ جو نوجوان ہیں وہ جو ہے ادھر تشریف لے آئیں، ادھر سامنے تشریف لیں تاکہ آپ کو بیان کو سننا بھی ہے۔ کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع کم ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بیدار ہونا چاہیے۔ نبی کی میلاد میں بیٹھے ہیں، ہم اس نبی کی میلاد میں آئے ہیں کہ جس نبی نے پیدا ہوتے حضرت آمنہ ماجدہ کی گود میں ابھی بچپن کا دور ہے تو یہ صدائیں بلند کی تھی، اللہم ربی حب لی امتی، ہمیں یاد کیا، سبحان اللہ۔ ہم کس کی میلاد میں بیٹھے ہیں؟ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے میرے پیاروں، ہم اس ذات کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ وارا فعان اللہ کا ذکر کیا، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ بیدار رہے، جتنے دیر آپ کہیں گے اتنی دیر انشاءاللہ بولوں گا، 10 منٹ کہیں گے 10 منٹ بولوں گا، 5 منٹ کہیں گے 5 منٹ بولوں گا، لیکن بیدار مجمع کم ہے تو کوئی نہیں، جتنے ہیں بہت ہیں ماشاءاللہ، اتنے بھی میلاد کے لیے بہت ہیں اور ذکر خیر کے لیے بہت ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہو۔ تو آپ ذرا بیدار رہیں، میں تقریر شروع کروں گا، آپ سماعت کریں اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ المولا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین وقار، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج سرزمین کنویاں محلہ ڈھیریاں جامع مسجد کے اندر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے امام صاحب کو اور یہاں کی کمیٹی کو، یہاں کے انتظامیہ کو، جنہوں نے میلاد مصطفیٰ کا چھوٹا سا مختصر سا پروگرام یہاں سجا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میلاد کے وسیلے سے اس گاؤں پہ، اس محلے پہ خاص کر کے رحمتیں فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا نا کہ جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس گھر میں اللہ کے نبی کا میلاد منایا جاتا ہے، اس محلے میں، اس بستی میں 1 سال تک آسمانی زمینی کوئی طوفان نہیں آتا۔ اس
घर में बीमारियां नहीं आती, उस मोहल्ले में बीमारियां नहीं आती, मुसीबतें घर नहीं करती। जिस मोहल्ले में 1 साल के बाद नबी का मिलाद मनाया जाता है, सुभान अल्लाह, तो आप मुकद्दर वाले हैं जो नबी का मिलाद मना रहे हैं और अल्लाह के घर में बैठे हैं। किसी शायर ने क्या वो फरमाया है कि जहां जिक्र हबीब होता है, जरा कह दे सुभान अल्लाह। देखो जब तक आप बोलेंगे नहीं तो मैं ऐसा आदमी हूँ कि इस तरह में बोल नहीं सकता। आप कम हो तो सुभान अल्लाह की दाद देते रहे, बेदार है यारा। शायर फरमाता है कि जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। अरे इस महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। हम किस महफिल में बैठे हैं? अल्लाह वाले की महफिल में बैठे हैं और अल्लाह की महफिल में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई घर दुनिया में नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बुरी जगह बाजार है और सबसे अच्छी जगह क्या है? बोलेंगे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। और मेरे और आपके आका ने फरमाया कि मस्जिद दुनिया के ऊपर जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो सुभान अल्लाह। अगर आपको दुनिया के ऊपर जन्नत को देखना है, अगर आपको दुनिया के ऊपर जन्नत को मुलाहिजा करना है तो मेरे प्यारों सबसे पहले मस्जिद में आना होगा। आना होगा मस्जिद में। ये मस्जिद एक ऐसा घर है कि जहाँ बैठ के इंसान को सुकून आ जाता है। दुनिया के बाहर अगर दरवाजे से बाहर रहेंगे हम, मस्जिद से बाहर मोहल्ले में, गांव में, घर में, किसी बस्ती में, किसी जगह बैठे होंगे तो हम दुनिया किसी दुनियादार की महफिल करेंगे, किसी दुनियादार की बात करेंगे, अपने घर की बात करेंगे, अपनी गाड़ी बंगले की बात करेंगे, अपने मालो दौलत की बात करेंगे, अपनी बिजनेस की बात करेंगे। लेकिन मेरे प्यारों ये वो घर है जहाँ बैठकर ना किसी दुनियादार की बात की जाती है, न घर की बात की जाती है, न गाड़ी बंगले की बात की जाती है। यहाँ वो घर है जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की जाती है। आइए गुफ्तगू आगाज से पहले गुम्मत हजरा में आराम फरमाने वाले आका, काली कमली वाले नबी जनाब माई आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर मोहब्बत और अकीदत के साथ, और मस्जिद का दीवार, ये पक्खे, ये लाइटें, ये ढेरिया का जंगल, ये परिंदे, ये हवा, ये घास के तिनके गवाह बन जाए कि अल्लाह ढेरिया की सरजमीन के अंदर, मस्जिद के अंदर तेरे और तेरे हबीब की मिलाद मनाई जाती है। ये गवाह बन जाए मैदान महशर में। इस नियत से पढ़े सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप जितने पिछले साल में बैठे हैं ना, अगर मेरी बात मानेंगे तो मिलाद मुस्तफा में आए हैं, आगे वाले साथ में आए, ज्यादा मजा आएगा। जितने दूर बैठोगे तो उतना मजा नहीं आता। पिछली वाले साथ आप आगे वाले साथ में आ जाए, आगे आ जाए थोड़ा। और जितने ये बुजुर्ग हजरात ने ये आगे आ जाए थोड़ा। ये दीवार के वैसे भी आपने ये तो बुजुर्ग, इनको क्या बताना है, इन्होंने उलमा के बयान सुने। मस्जिद के दीवार के साथ वैसे भी टेक लगा के बैठना जायज नहीं है। जो उजर वाला है, बेचारा बुजुर्ग है, वो लगा के बैठ सकते हैं क्योंकि उजर है, बुजुर्ग है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नौजवान आदमी मस्जिद के साथ टेक लगा के बैठे तो ये अच्छा नहीं है। आदाब को मद्देनजर रखना चाहिए। मस्जिद ये मसाजिद है, अल्लाह का घर है, ये इबादत गाह है, ये नमाज गाह है। यहाँ अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों का और नबी पाक की रहमतों का नज़ूल है। अल्लाह के मलाइका जो है नूरानी फरिश्ते यहाँ हाजिर हैं। और ऐसा ना हो कि कल हमें इसका सवाल हो कि मेरे घर में बैठा था तो उसके आदाब कैसे थे, क्या थे बैठने के आदाब, ये भी हमें पूछा जाएगा। तो आपने मुझसे कबल आपके अपने इमाम साहब से बहुत अच्छा खिताब समाप्त किया है। अल्लाह ताला इनकी नौनिहाल उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके इल्म में उम्र में बेपनाह रहमतें बरकतें अता फरमाए। मैं बहुत साफ अल्फाज में कुछ देर बोलूंगा आपके सामने और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, तो इंशाल्लाह हमारा आने का मकसद भी पूरा होगा। एक इशार पढ़ूंगा। आला हजरत फरमाते हैं
निसार तेरी चहल बहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल बहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मनाते हैं, सिवाय इबलीस के। आपने देखा कि एक इबलीस वो ऐसी चीज है जिसको हम शैतान कहते हैं, उसके सिवा दुनिया के ऊपर हर इंसान, हर जानदार चीज नबी की मिलाद, नबी का जिक्र करती है, सिवाय इबलीस के। इबलीस हमें नमाज से रोकता है, इबलीस हमें कुरान की तिलावत से मना करता है, इबलीस हमें मस्जिद के अंदर आने से मना करता है, इबलीस हमें नेक महफिलों में बैठने से मना करता है, इबलीस जहाँ जिक्र खैर होता है वहां से मना रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा उसके सिवा और दूसरा बंदा कोई नहीं जो जिक्र इलाही से और जिक्र मुस्तफा से रोकने वाला, इबलीस ही है जो इन महफिलों से रोकता है। तो मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आप कहते हैं सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। आप बेदार, मैंने कहा ना बेदार रहे कि जितना कहोगे बोलूंगा, लेकिन बेदार मजमू होना चाहिए। जो मेरे भाई बाहर है ना, मैं ऐलान करता हूँ, बाहर है वो लंगर के पास या इधर उधर है, थोड़ी देर के लिए सारे अंदर आ जाए तो मजा आएगा। जो उधर मैं जब आया था ना तो रोड से तो कुछ मेरे भाई जवान रोड में बैठे हुए मोबाइल चला रहे थे। देखो हमारी बात है, हक बात के ना, हम डंके की चोट पर, हमें अल्लाह पाक ने ये चीज विरासत में दी है, अल्लाह के रसूल ने, और ये नबी की हदीस भी अल-उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद दीन का जो वारिस है वो आलिम है, वो किसी मसले का हो, मसला कोई भी हो। हमने देखो ये दीन है, मसला कोई भी हो, लेकिन दीन का वारिस है तो अल-उलमाउ वरसतुल अंबिया, तो हमने उसकी बात को मानना है, तस्लीम करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि देखो अब जवानों की ये हालत है कि इस जवानी को लेकर अभी हमारे जवानों को अगर ये समझ नहीं आती कि हम किसी महफिल में आए यार, तो मोबाइल चलाना अच्छा तो नहीं है ना। ये मोबाइल ही हमारी जिंदगी की बर्बादी है, ये मोबाइल ही हमें जन्नत के अंदर ले जाने वाला है, ये मोबाइल ही कर हमें बारों से क़यामत शर्मसार करके नबी के चेहरे से हटा देने वाला है, यही मोबाइल है। आज दुनिया के अंदर जो हमें इस दुनिया के माशरे में गलत महसूस कर रहा है, गलत गाइड देने वाली की आज यही मोबाइल है। तो मैं जवानों से गुजारिश करूँ जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये रोड में है या ये दुकान के पास बैठे हैं या मस्जिद के शहर में बैठे हैं, अल्लाह के लिए आप आ जाए अल्लाह के घर में, और आपका आना यही आपकी नजात का जरिया है, आपके बख्शिश का जरिया है। आओ आज की रात के 2-4 मिनट के लिए अल्लाह के घर में आ जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हर दुआ फरमाए। अल्लाह पाक फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। आप कहते सुभान अल्लाह, मिलाद वाले नबी का जिक्र हो रहा है, एक नूर और रोशन किताब। आप नूर का माने क्या है? नूर वो है जिस नूर के सदके में अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया है, जिस नूर के सदके में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पैदा किया है, आसमान को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सितारों को पैदा किया, हजर सजर को पैदा किया, जमीन के फर्श को अल्लाह ताला ने बिछाया है, आसमान का शमियाना बिछाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को जब नबी बनाया तो हजरत मेरे और आपके आका के नूर के सदके में सारी कायनात बनाई। अल्लाह ने नूर के सदके में फरमा दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मैं आपको इसका मानी बताता हूँ, इसका तर्जमा बताता हूँ कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अगर नूर न होता, आप मिसाल ले लीजिए, मस्जिद के अंदर बैठे हैं, लाइट लगी है, बल्ब लगे हैं, अगर बल्ब न होते तो मस्जिद के अंदर अंधेरा होता, हमें बैठने का मन न करता, हम बैठ नहीं सकते, अंधेरा होता, हम अपने मकान के अंदर जाते हैं, मकान के कमरे के अंदर बल्ब नहीं होगा तो अंधेरे में मजा नहीं आएगा, लाइट होगी तो मजा आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं कुरान को नाजिल करूंगा तो कुरान को पढ़ने के लिए लाइट की जरूरत है, कुरान को पढ़ने के लिए नूर की जरूरत है, कुरान को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन,
मुबीन। इस नूर से मुराद क्या है? नूर से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह ताला ने अगर किताब को नाजिल किया है तो किताब के नाजिल होने से पहले अल्लाह ताला ने नूर को पैदा किया है, जिस नूर के जरिए से कुरान को पढ़ा जाए और कुरान को समझा जाए, कुरान की तफसीर को समझा जाए। अगर वो नूर ना होता तो कुरान कैसे पढ़ा जाता? सुभान अल्लाह। अगर हमें कुरान मिला है तो नूर वाले नूर के सदके में मिला है, मिलाद वाले नबी के सदके में मिला है। मेरे प्यारों, ये वो नूर है जिस नूर के सदके में अल्लाह ताला ने सारी कायनात को दुनिया में पैदा किया। आप कहते हैं सुभान अल्लाह, नूर के सदके में। अब आगे थे, ये वो नूर है जो आफताब और महताब के नूर से करोड़ों दर्जा अफसल वाला, करोड़ों दर्जा। आप देखें दुनिया के अंदर बड़े बड़े नबी आए, खूबसूरती, जमाल, हुस्न और जमाल का क्या कहना, और सारे नबियों से ज्यादा खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने अता किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर थे, तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदार लेकर बेचने लगे तो वो किसने खरीदा था? हजरत माई ज़ुलेखा के घर में गया तो माई ज़ुलेखा ने वो जब अपने घर में रखा तो उसके बाद माई ज़ुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थी। तो हजरत यूसुफ के इश्क में माई ज़ुलेखा की आंखों की बिनाई खत्म हो गई। आपने वाक़या देखा सुना कि जब हम गुज़ारे यूसुफ किताब को पढ़ते हैं तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई लश्कर लेके कहा जाते, उनका लश्कर आ रहा था, तो माई ज़ुलेखा की आंखों की बिनाई खत्म हो चुकी थी। तो माई ज़ुलेखा ने हजरत यूसुफ के रास्ते को मल कर बैठ गई कि इस रास्ते से कहीं यूसुफ आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो जब पूरा लश्कर गुजर गया, किसी ने ये नहीं देखा, समझा नहीं कि इस रास्ते में कौन बैठा है, कौन है ये औरत, क्यों बैठी है। बाकी वाले तो यही समझ रहे हैं कि ये कोई पागल है इसलिए बैठी है, इसको कोई होश आवाज नहीं है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी, उनकी सवारी गुजरी तो उस सवारी के पांव जब हजरत ज़ुलेखा के जिस्म के साथ लगे तो हजरत माई ज़ुलेखा ने कहा कि यूसुफ की सवारी यही है। सुभान अल्लाह, समझ लिया कि ये और किसी की सवारी नहीं हो सकती है, ये यूसुफ की सवारी है। इतना प्यार करती थी माई ज़ुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर माई ज़ुलेखा के घर में आए तो एक कमरे में बंद कर दिए, और मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वहां आई तो माई ज़ुलेखा को ताने देने लगी, ऐ ज़ुलेखा तो तेरा कमाल है, तो बहुत अजीब औरत है कि अपने घर के अंदर जो तूने नौकर रखा हुआ है उसे तो प्यार कर दिया। तो माई ज़ुलेखा ने कहा है औरत तो सुनो, तुमने मेरे यूसुफ को देखा नहीं, तुम बातें कर रही हो, तुमने हजरत यूसुफ के जमाल को नहीं देखा, तुम इसलिए उसकी बातें कर रही हो, क्या देखना चाहती हो? तो मिस्र की औरतों ने कहा ऐसा नहीं, तू दिखा देना हजरत यूसुफ, उसका जमाल कैसा है, उसका हुस्न कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसका नूर कैसा है, तो दिखा दे, हम देखना चाहते कितना खूबसूरत है वो। तो माई ज़ुलेखा कहती है कि आपने देखा नहीं, जब आप देखेंगी ना तो आपको पता चलेगा यूसुफ है कौन है। तो मेरे सरकार के चाहने वालों, माई ज़ुलेखा ने तमाम औरतों को बुला लिया घर के अंदर, बुला के बैठा दिया। बैठाने के बाद माई ज़ुलेखा ने उन एक औरत के हाथ में एक सेब दे दिया, और सेब देने के बाद एक हाथ में छुरी दे दी, अब ये छुरी से सेब काटो और खाओ, मैं यूसुफ को लेकर आती हूँ। जब सेब लेकर बैठ जाती है, बैठने के बाद वो सेब काट कर खाना शुरू कर लिया। उधर माई ज़ुलेखा यूसुफ की बारगाह में जाती है, अर्ज करती है ऐ यूसुफ, आज मेरा इम्तिहान का वक्त आ चुका है। बारगाह इलाही अर्ज करती है, मौला आज मेरे इम्तिहान का वक्त है, आज मेरा इम्तिहान कामयाब करवाना मौला तेरे जिम्मा है और हजरत यूसुफ के जिम्मा है। जब हजरत यूसुफ की बारगाह में सवाल किया, हजरत यूसुफ की बारगाह में सवाल किया, कहा यूसुफ आज तुझे आना होगा और अपने चेहरे से निकाब हटा के आना होगा। जब निकाब हटा के हजरत यूसुफ आए, बाहर निकले, उन औरतों के बीच में से गुजरे, सारी औरतों ने जब दीदार किया हजरत यूसुफ के चेहरा अनवर का, जब दीदार किया तो औरतें उधर सेब काट रही हैं, लेकिन सेब काटना भूल गई।
गई। वो छुरी सेब के ऊपर चलने के बिना हाथ के ऊपर चल रही है, उंगलियां कट रही हैं। हजरत यूसुफ के इश्क में इतनी मगन हो गई, ये पता नहीं चला कि हम सेब काट रही हैं या कि उंगलियां काट रही हैं। मदहोश हो गई, बेहोश हो गई। माई ज़ुलेहा ने पूछा, ए औरतों क्या हुआ, क्या बीत रही है, क्या गुजरा आपके ऊपर? तो उन्होंने कहा कि माई ज़ुलेहा वाकया तो सच कह रही थी, ये यूसुफ भी किसी माँ का बेटा है, ये यूसुफ भी कोई लाल है, हमने पहली बार देखा है। हमें ये पता नहीं चला कि हम सेब काट रहे हैं या उंगलियां काट रही हैं, हमें तो इसके नूर ने हमारे चेहरे को गुम कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो वो यूसुफ कहते हैं, जब यूसुफ ने मेरे और आपके आका के जमाल को देखा, जब मेरे और आपके आका के हुस्न को देखा, तो यूसुफ कहते हैं, वाह रे अल्लाह, वाह परवरदिगारा, मैं तो अपने हुस्न पे गुमान करता था कि मेरा हुस्न बहुत खूबसूरत है। जब माई आमना के लाल को देखा, वो यूसुफ कहते हैं, करोड़ों यूसुफ हो, हजारों यूसुफ हो, लाखों यूसुफ हो, लेकिन नूरे मोहम्मदी हजूर के चेहरे का जो नूर है वो सारे का सारा मेरे नबी के नूर पे कुर्बान हो जाए, उससे भी ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी का चेहरा है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का इतना जमाल है, उस नूर का तज़किरा है। तो मेरे और आपके आका इस्लाम ने फरमाया, मेरे और आपके आका की बारगाह में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं। हदीस पाक है, जाबिर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वादी, मेरे आका मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला ने दुनिया में किस चीज को पैदा किया है? सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर ने मेरे आका से पूछा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाबिर तुम जानते नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ जाबिर मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, सबसे पहले। हम कहते हैं, आज सवाल होते हैं जी कि हजरत आदम सबसे पहले नबी है भी सबसे पहले नबी, इसमें शक कोई नहीं है। इंसानियत किससे चली? हजरत आदम से। तो हजरत आदम सबसे पहले नबी है। तो हजरत आदम की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ, लफ्ज़ की गिलत है, बहुत इंशाल्लाह जितना कहेंगे बोलूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, अब पुतला तैयार हो रहा था, तो जब पुतला तैयार करके मिट्टी का पुतला अल्लाह पाक के मलाइकों ने रख दिया, जब रखा तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम के जिस्म के अंदर रूह डाली। गौर से समाप्त करें, जिस्म के अंदर रूह डाली। अब रूह डाली तो रूह वापस आ गई, रूह वापस आ गई। अल्लाह ने रूह से सवाल किया, रूह तू वापस क्यों आ रही है? तो रूह ने जवाब दिया, बारी ताला, इस मिट्टी के बेजान पुतले के अंदर मुझे अंधेरा नजर आ रहा है। अब दुनिया के अंदर जितना उजाला, जितना नूर है वो आदम के अंदर नहीं है, तो मैं कैसे रह पाऊं? दूसरी मत डाला, रूह वापस आ गई। तीसरी मत डाला, रूह वापस आ गई। अब चौथी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने क्या करिश्मा दिखाया हजरत आदम को। जब चौथी मरतबा रूह को डाला, रूह डालने से पहले अल्लाह पाक ने नूरे मोहम्मदी की थोड़ी सी झलक हजरत आदम की पेशानी में रख दी। क्या सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं जी 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान हुआ, मेरे नबी 40 साल के बाद नबी। कुछ लोग कहते हैं, बहरहाल हमसे हमें कुछ नहीं लेना। तो मैं कहता हूँ, हजरत आदम की पेशानी में अल्लाह ताला ने नूर को चमकाया। जब नूर को चमकाया तो चमकाने के बाद रब तबारक व तआला ने हजरत आदम के अंदर रूह को डाला। जब रूह को डाला तो रूह वापस नहीं आती, अब रूह बाहर नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने सवाल किया रूह से, ऐ रूह मैंने 3 मरतबा तुझे आदम के अंदर डाला तो तू वापस आई, अब तू वापस नहीं आई, इसका कारण क्या है मुझे बता। तो रूह ने हजरत आदम के जिस्म से सवाल जवाब दिया, ऐ बारी ताला, ऐ मेरे मालिक व खालिक, सारी कायनात के पैदा करने वाले मालिक, जब मैं पहले आई तो आदम के अंदर अंधेरा था, अब जब तूने मुझे आदम के अंदर भेजा है तो आदम के अंदर इतना नूर है, इतना नूर मुझे नजर आ रहा है कि मैंने दुनिया के ऊपर ऐसा नूर देखा ही नहीं है, ऐसा नूर मैंने दुनिया के अंदर देखा नहीं है। हजरत आदम जब वो रूह डाली तो जिंदा हो गए। अब हजरत आदम हुक्म खुदा से जिंदा हुए, बैठने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तकबाल के लिए फरिश्तों को बुलाया।
मलाइकों को बनाया, सब ने तो सजदा किया, सजदा ताज़ीम करो, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। शैतान अकड़ गया, ए अल्लाह मेरी इबादत बहुत ज्यादा है, मेरी नमाजें ज्यादा है, मेरी तिलावतें ज्यादा है, मेरे सजदे ज्यादा है, मेरे सरकार के चाहने वालों अल्लाह की बारगाह में सजदा भी वही कबूल है जो मोहब्बत रसूल में किया जाता है। अल्लाह की बारगाह में तिलावत भी वो कबूल है जो मोहब्बत रसूल में की जाती है। बारगाह इलाही में जो इबादत की जाए तो मोहब्बत रसूल में की जाए, वही इबादत कबूल है। वरना मोहब्बत रसूल के अलावा सजदा भी अधूरा है, तिलावत भी अधूरी है, इबादत भी अधूरी है। चाहे करोड़ों दर्जे किए सजदे किए जाए तो वो काबिल कबूल ना होने वाले हैं जब तक मोहब्बत रसूल ना होगा। तो हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मौला तूने मुझे इंसान बनाया और सारी कायनात का नबी बनाकर भेज रहा है, मौला किसके सदके में बनाया है? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या है आदम, मैंने तुझे अपने महबूब के नूर के सदके में भेज रहा हूँ। या अल्लाह वो महबूब कहाँ है? हजरत आदम सवाल, या अल्लाह वो तेरा महबूब उसका नूर कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ जिसके सदके में मौला तूने मुझे पैदा किया। हजरत आदम ने जब सवाल किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, आज कुछ लोग कहते हैं कि हम अंगूठे चूमना कहाँ से साबित है? सबसे पहले हमारे अब्बा की सुन्नत है। क्या तो सुभान अल्लाह। हम सब के अब्बा कौन है? हजरत आदम। हम सब की माँ कौन है? हजरत हमारी हवा। आज कोई भी फिरके का आदमी आ जाए, कोई भी, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, सब हो, हम सब के अब्बा हजरत आदम है। तो जब हजरत आदम ने सवाल किया, मौला किसके सदके में पैदा किया मुझे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, आदम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और हाथों के अंगूठों के नाखूनों में देखो कि मेरे नबी का नूर जलवे मार रहा है। तो जब हजरत आदम ने दोनों हाथों को उठाया, इन नाखूनों को मुलाहिजा किया, अंदर से नूरे महमदी जलवे दे रहा है। हजरत आदम ने नूरे महमदी को देखा तो मचल गए और चूम कर आंखों से लगा लिया। सबसे पहले इसमें हजरत आदम की। हजरत आदम खुश हो गए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कहाँ भेजा? जन्नत में। भाई हवा को कहाँ भेजा? जन्नत में। आप जन्नत में भेजने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि आदम जन्नत के अंदर भेज रहा हूँ, लेकिन वहाँ गायों के दाने हैं, वहाँ उनको खाना नहीं है, क्योंकि जन्नत पाक जो है रफ़ाए हाजत के लिए जगह नहीं है और तुझे वहाँ खाने पीने की जगह नहीं है, कुछ नहीं खाना है। तो जब कुछ नहीं खाना है तो नहीं खाना था, लेकिन शैतान लाइन आया, उसने जो है हजरत आदम को भुगला दिया तो एक दाना खा लिया। अब जब खा लिया तो फिर जरूरी है कि रफ़ाए हाजत के लिए, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को निकाल के दिया जन्नत से। आप 300 साल तक हजरत आदम रोते रहे। आपने सुना उलमा किराम से 300 साल तक हजरत आदम रोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की तौबा को कबूल नहीं किया। सुनने का मजा आता है और इस तारीफ पढ़ो तो मजा आएगा। देखो क्या है, 300 साल तक अल्लाह ताला ने आदम की तौबा को कबूल नहीं किया। आदम ने हर तरह की तौबा सवाल किए हैं, हर तरह के सवाल किए हैं, लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं किया। 300 साल के बाद हजरत आदम ने कहा, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सवाल पेश करता हूँ, मेरे मौला तुझे उस नबी का वास्ता, जब मैं जन्नत के अंदर था तो जन्नत से अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले मैंने जन्नत के दरवाजे पे पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह जिस नबी का नाम तूने जन्नत के दरवाजे पे लिखा है, उस महबूब के वसीले से मौला मेरी तौबा कबूल फरमा। हजरत आदम ने कहा, या अल्लाह जब मैं जन्नत में गया तो जन्नती पेड़ों के दरख्तों के पत्तों के ऊपर मैंने पढ़ा हुआ लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह उस नाम के सदके में मेरी तौबा कबूल फरमा। हजरत आदम फरमाते हैं, या अल्लाह जब मैं जन्नत में अंदर गया तो जन्नती हुरों के परों के ऊपर मैंने देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह उस नाम के सदके में आज मेरी तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने 300 साल के बाद हजरत आदम की तौबा अगर कबूल की है तो नाम मोहम्मद के वसीले से कबूल की है। मेरे भाई मुसलमानों, अगर अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तौबा कबूल की है तो मिलाद वाले नबी के सदके में तौबा कबूल की है। और कोई नबी नहीं आया। वहां से साबित क्या होता है
کہ سب سے پہلے نور میرے نبی کا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آمنہ ماجدہ کی گود میں میرے آقا آئے تو نور جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اللہ پاک نے زمین آسمان کیا جب یہ بنیاد رکھی تو نور پاک کے صدقے میں رکھی ہے. آسمان کے اوپر ستارے سجائے تو نور محمدی کے صدقے میں, سورج سجائے تو نبی کے صدقے میں, چاند لگائے تو نبی کے صدقے میں. یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے آقا کی میلاد کے صدقے میں ہے. اب چلو مائی آمنہ کی بات کریں. وہ مائی آمنہ جو میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام کی والدائن واجدہ ہے. حضرت سے آپ نے خطاب کیا, سنا ہے, سماعت کیا ہے. تھوڑی سی جھلک میں آپ کو بتا دیتا چاہتا ہوں, ٹائم کی قلت ہے. مائی آمنہ فرماتی ہے جب میری گود میں میرا لال آنے والا تھا, ابھی آیا نہیں, ابھی شکل میں ہے. جب میرا لال میری گود میں آنے والا تھا, ابھی کچھ دنوں سے پہلے میرے حجرہ کے اندر مکہ اور مدینہ کی بڑے بڑے لمبے قد والی عورتیں آتی ہیں. آنے کے بعد عرض کرتی ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو. بڑے بڑے لمبے قد والی عورتیں آتی ہیں, کہتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو. اے آمنہ تیری گود میں ساری کائنات کا نبی آنے والا ہے. حضرت مائی آمنہ فرماتی ہیں اب جب وہ مبارکیں دے کے چلی جاتی ہیں, اس کے بعد جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا, مائی آمنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا, کوئی عورت نہیں تھی, کوئی سہارا نہیں تھا. میں اکیلی حجرہ کے اندر تھی. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی انتقال کر چکے تھے. کوئی نہیں تھا گھر پہ. جب میرا لال آیا تو باقی عورتوں کو بچے کی پیدائش کے وہ بہت درد محسوس ہوتا ہے, درد محسوس ہوتا ہے, مصیبت ہوتی ہے. تو حضرت مائی آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا. سبحان اللہ, کچھ محسوس نہیں ہوا. جب میرا لال میری گود میں آیا تو آنے کے بعد میں کیا ماجرا دیکھتی ہوں کہ جب بچہ میری گود میں آیا, پیدا ہوا, جب آیا تو میرے حجرے کے اندر نور ہی نور پھیل گیا. ایسا نور پھیل گیا کہ میرے حجرے کے اندر ایک چراغ جل رہا تھا. اس چراغ کی روشنی ختم ہو چکی تھی, وہ چراغ نظر نہیں آ رہا تھا. نور محمدی کا جلوہ زیادہ تھا. اب حضرت مائی آمنہ فرماتی ہے کہ نور محمدی کے روشنی سے میں نے شام کے ملاتوں کو ملازہ کر لیا. مکہ سے اور مدینہ سے شام کتنا دور ہے, میں نے شام کے محلاتوں کو ملازہ کیا, مدینہ اور مکہ کے محلاتوں کو ملازہ کیا. نور محمدی جلوے دے رہا ہے. ایسا لال میری گود میں آیا کہ 14ویں کا چاند کیا ہے اس سے بھی زیادہ ہمسوٹی اور نور نورانی نورانی جو ہے نوری نوری لائٹ چھا رہی ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے. جب میری گود میں میرا لال آتا ہے تو میں آتے ہی کیا دیکھتی ہوں, جب پیدا ہوتا ہے تو مسکرا رہا ہے. سبحان اللہ. فرماتی ہیں باقی عورتوں کے بچے پیدا ہوتے, کسی کا رو رہا ہے, کسی کا کسی حالت میں, کسی کا کسی حالت میں. جب میری گود میں میرا لال آیا روتا بھی نہیں, کچھ نہیں کرتا, لیکن لب مسکرا رہے, مسکراتا ہوا آتا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی مسکراتے ہوئے جب مسکرا رہے ہیں تو آمنہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں ماجرا کچھ کیسا ہے. تو مسکراتے مسکراتے میری گود سے کروٹ بدلی اور سر سجدے میں رکھ لیا. ابھی پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا تو لب مبارک ہل رہے ہیں. میں کہتی ہوں کیسا ماجرا ہے, پیدا ہوا بچہ رو نہیں رہا, چلا نہیں رہا, خوشیوں سے آ رہا ہے, مسرتوں سے آ رہا ہے, مسکرا رہا ہے, اب سجدے میں سر سجدے میں رکھ لیا تو لب مبارک ہل رہے. تو میں نے جب اپنے کان حضور کے لبوں کے ساتھ لگائے نا تو میرے آقا کی معصوم لبوں سے کیا آواز آتی تھی, پیدا ہوتے ہی کہا اللہم ربی حب لی امتی, اللہم ربی حب لی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. پیدا ہوتے میرے نبی نے اس گناہگار امت کو یاد کیا ہے, اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے. پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا میرے پیاروں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے,
अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक ने जिब्रील आमीन को भेजा, क्या जिब्रील आमीन 3 झंडे लेकर जाओ, एक झंडा मगरिब में लगाओ, एक मशरिक में लगाओ और तीसरा झंडा खाना काबा की छत पे गाड़। ये झंडा लगाना सबसे पहली जिब्रील आमीन की सुन्नत है, और मिलाद मनाना मेरे और आपके रब की सुन्नत है। अल्लाह ने प्यारे महबूब की मिलाद मनाई है। आपको क्या क्या मिलाद मनाना? अच्छा, मैं आपको एक और मसले की बात आपको सुनाता हूँ। नमाज क्या है? फर्ज है। अब लोग कहते हैं ये मिलाद मनाते हैं तो नमाज हम कहते हैं नमाज क्या है? फर्ज। रोजा क्या है? फर्ज। हज क्या है? फर्ज। अच्छा, ये मिलाद हम इसको फर्ज भी नहीं कहते, मतलब की बात बता रहा हूँ। हम इसको फर्ज नहीं कहते, हम इसको सुन्नत भी नहीं कहते, हम इसको नफिल भी नहीं कहते। ये जो है ये है क्या? मुस्तहब। क्या है? मुस्तहब। मुस्तहब है। अब इसका ये है कि नाम इसको फर्ज थोड़ी ना कहते हैं कि मिलाद मनाना फर्ज है, हम इसको थोड़ी ना कहते हैं कि ये है कि हम कहते हैं मुस्तहब है। और मुस्तहब अमल ये है कि अगर आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो वो आपकी चॉइस, लेकिन और करोगे तो अल्लाह ताला दुगना सवाब देगा, दुगना सवाब देगा। लेकिन मिलाद के अंदर क्या होता है? मिलाद के अंदर कोई गैर बात नहीं कही जाती, मिलाद के अंदर कुछ और नहीं बोला जाता। मिलाद के अंदर नबी और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया जाता है, नमाज का कहा जाता है, कुरान पढ़ने का कहा जाता है, नेक अमाल करने का कहा जाता है, मसाजिद को आबाद करने का कहा जाता है। इसी का नाम मिलाद है। और अल्लाह के नबी का जो उम्मती 5 वक्त नमाज पढ़ता है ना, तो वो मिलाद ही तो करता है। कुरान पढ़ता है तो मिलाद ही तो करता है। अब हम ये नहीं किसी को कहेंगे कि फला मिलाद नहीं पढ़ते तो हम मिलाद, हो सकता है पढ़ते हो तो हम उनको टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोग जुलूस के लिए से जुलूस निकाले, क्योंकि सहाबा किराम ने जुलूस निकाला, ये सहाबा किराम की सुन्नत है। झंडा लहराना जिब्रील आमीन की सुन्नत है। आप कहोगे कहाँ से हवाले? तो आपको अगर किसी को जरूरत है, हम तो हवाले इतने बड़े दे नहीं सकते क्योंकि मुफ्ती है नहीं। आप जिसको जरूरत है तो कल मैं आपको दावा देता हूँ सबको, आप जामा मस्जिद नमाज में आ जाए। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के खतीब हजरत मुफ्ती फारूक साहब आ रहे हैं, उससे सवाल करने के लिए झंडा लहराना क्या है, तो हजरत कई हदीसों का हवाला देके जाए, हजारों हदीसों का हवाला देके जाए, ऐसा नहीं। तो आप ये मिलाद मनाना क्या है? मुस्तहब है, और हम मुस्तहब अमल करेंगे। फर्ज के बाद दूसरा दर्जा मुस्तहब का है, फर्ज के बाद दूसरा दर्जा मुस्तहब का है, जरूरी है, मनाना चाहिए, हम मनाएंगे, इसको जरूरी है। लेकिन मेरे प्यारों, हम क्यों ना मनाएं? जिस नबी के सदके में हमें जिंदगी मिली तो हम उसका मिलाद ना मनाएं। आपको मैं बात बताऊं कि हजरत आमना ने फरमाया, अब उसके बाद मक्का और मदीना के अंदर आपने देखा, तारीख में पढ़ा, उलमा की ज़बानी सुना कि मेरे और आपके आका की आमद से पहले मक्का और मदीना के कैसे हाल थे, कैसे हाल थे। जब मेरे और आपके आका की नबूवत का ऐलान या हजरत आमना की गोद में अभी पैदा न हुए थे, कुछ उनसे कबल पैदा होने से कबल मक्का और मदीना के इतने खस्ता हाल थे कि जिसके घर में बच्ची पैदा होती थी, अल्लाह अकबर, उस बच्ची को जब तक वो बाप जिंदा खड्डा गाड़ के अंदर दबा नहीं देता था तब तक वो खाना नहीं खाता था। अस्तगफिरुल्लाह। और अपने जालिम कि जब तक उस बच्ची को मार नहीं देते थे, घर के अंदर बच्ची को रहना गवारा नहीं रखते थे वो। और जिस औरत का शौहर मर जाए तो उस औरत को वो मनहूस समझा करते थे, उसको न समझा करते थे, और उस औरत को 6 महीने तक एक कमरे के अंदर बंद कर देते थे, कैद कर देते थे। इतना बड़ा आजाद। तो जब रहमत वाले नबी आए, अल्लाह ने जब नबी को पैदा किया, हज़रत आमना की गोद में आए, तो जुल्म और सितम होना हट गया। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। क्या नबी मुसलमानों के लिए रहमत है? क्या नबी जो है इंसानों के लिए रहमत है? मेरे आका हिंदू के लिए भी रहमत है, ईसाई के लिए भी रहमत है, मुसलमान के लिए भी रहमत है, जानवर के लिए भी रहमत है, हजर और सजर के लिए रहमत है,
پیڑ پودوں کے لیے رحمت ہے، ہوا پانی کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھو کیسے رحمت ہے، میلاد پڑھ رہے ہیں نا ہم نبی کی میلاد پڑھ رہے ہیں، کیسے رحمت ہے۔ ایک صحابی کی اونٹ بٹر گئی، ایک صحابی رسول میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی بابی میرے ماں باپ آپ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میری اونٹ بگڑ گئی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے کھاتی ہے، مجھے مارتی ہے، یا رسول اللہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں آتی، اب بھاگ جاتی ہے، مجھے مارتی ہے، مار دے گی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے تو عرض کہ یا رسول اللہ کیا حال ہوگا۔ میرے آقا نے کہا کہ میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں تیری اونٹ کو کھایا۔ حضور آ گئے، صحابہ کرام نے منع کیا، صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، مولا علی نے منع کیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو اذیت پہنچائے گی، آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرے گی، بے ادبی کرے گی، یا رسول اللہ اس کے قریب نہیں جانا۔ میرے آقا آئے تو ایک میدان کے کونے میں اونٹ جو ہے وہ گھاس کھا رہی تھی، تو جب دیکھا بہت دور سے اونٹ نے دیکھا تو کسی انسان کو جنگلوں کھانے کے لیے پھاڑنے کے لیے آ جاتی تھی، وہ دوڑتی چلی آ رہی ہے، سادہ کریں یا رسول اللہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، تو میرے آقا آگے جا رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نہ جائیں، اور دوڑتی آئی ایسے جیسے یہ حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرے گی۔ جب آئی دوڑتی تو وہ آتے ہی میرے اور آپ کے آقا کے قدموں میں گر گئی، سبحان اللہ، قدموں میں گر جاتی ہے، آپ گر گئی تو صحابہ کہتے ہیں یا اللہ کیا ماجرا ہے۔ آپ گر گئی تو کچھ دیر تک حضور کے سے بات چیت ہو رہی، قدموں میں گر گئی، بات چیت ہوئی تو حضور جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، اللہ نے رحمت اللہ علیہ نبی بنا کر بھیجا حضور کی، تو جب بات چیت ہوئی تو حضور آئے، اونٹ واپس چلی جاتی ہے۔ حضور آئے تو اس اونٹ کی مالک کے پاس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے تو مجھے بتا کیا ماجرا ہے۔ اس نے یا رسول اللہ اس نے کیا کہا آپ کو، کیا بولا، کیا بول رہا ہے یہ اونٹ میرا۔ کہا کہ تو اس کو گھاس کھانے کے لیے نہیں دیتا تو سامان بہت زیادہ لاتا ہے، اس سے کام بہت زیادہ لیتا ہے تو، اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے کام اتنا لے رہا ہے کہ وہ اس کی حاجی کوئی نہیں، اور مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دے رہا، میں کمزور ہو چکا ہوں، جب تک میں تندرست تھا تو اس کا کام کرتا رہا، اب میرے جسم میں جان اتنی نہیں رہی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، اب میں اس کا کام کیسے کروں۔ دوسرا سوال یہ کیا اونٹ نے کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کو اذیت نہ دیتا، اگر میں اس کو کھاتا نہ، اگر میں اس کو مارتا نہ، تو یا رسول اللہ مجھے آپ کا دیدار بھی تو نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دیدار کے لیے مجھے یہ معلوم تھا کہ جب میں بٹر جاؤں گا، جب میں اس کو کھانا شروع کروں گا، یہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، یہ اللہ کے نبی کے پاس جائے گا۔ وہ مجھے دلیل یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس جائے گا، اللہ کے نبی اس میدان میں تشریف لائے کہ میں دیدار کر لوں گا۔ یا رسول اللہ سب سے بڑا سوال میرا تو یہی تھا، مقصد میرا تو یہی تھا کہ اللہ کے رسول یہاں آئیں گے، میں ان کے چہرے کا دیدار کر لوں گا، تو میرے دیدار کر لیا، میرا مقصد حل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ثابت سن جا، اب نہیں کاٹے گا تو اس کے آگے چارہ ڈال، گھاس ڈال، اب یہ تیری سیوا خوب کرے گا تو اس کی سیوا کر۔ تو مجھے وہاں سے پتا چلا کہ جانور بھی نبی کی بارگاہ میں کتنی محبت کرتے ہیں، اور حضور بھی ان جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضور کو علم غیب نہیں ہے تو وہ پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ہمارے پاس ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں۔ میں کہتا ہوں میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں ایک اتنا سا عالم ہوں جس کو میرے پاس سے ثبوت چاہیے تو جامع سے غریب نواز میں آ جائے، میں ان کے ہاتھ کی، اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوئی، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب تقویت الایمان آپ کو ذرہ ذرہ بتا کے دوں کیا کیا گستاخیاں لکھی، تو یہ کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ کہتے ہیں علم کے پیچھے، یہ پیٹ کے پیچھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سنیو آپ کے مقدر کو سلام کہ اللہ نے آپ کو ایسا نبی عطا کیا کہ جس نبی نے پیدا ہوتے بھی امت کو یاد کیا اور دنیا سے جاتے بھی نبی کو یاد کیا، امت کو یاد کیا ہے۔ آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے، آپ اٹھاؤ نا تاریخ پڑھو، آج ہمارے نوجوانوں کا معاشرہ دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم سب سے بڑی میلاد یہی ہے کہ ہمارا نوجوان انگریز کی کٹنگ کو بند کر دے گا، ہمارا نوجوان اسٹائل کی کٹنگ کو بند کر دے گا۔ نوجوانوں یاد رکھو جو کٹنگیں آج میں نے اور آپ نے کروانا شروع کی ہے، اس کے اندر یہ کٹ لگا ہوا ہے، کسی کو یہاں زڈ لکھا ہوا دیکھا جائے
जाता है, किसी को यहाँ ए का नक्शा होता है, किसी को यहाँ बी का नक्शा होता है। ये माजरा क्या है? ये बी लिखवाने वाला, ये ए लिखवाने वाला, ये जेड लिखवाने वाला नौजवान अपनी जवानी को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? तेरी जवानी के लिए अमला के नार में आज से 1400 साल पहले गारे सोर के अंदर 3 दिन भूखे प्यासे रहकर ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आज हमारा ये हाल है कि नबी की उम्मत में रहकर हमारी कटिंगें देखो, हमारी वज़ा कता देखो, हमारी उस जो है अंग्रेज के ऊपर चढ़